زمین ایک معمہ، اس کی گہرائیوں میں چھپے ہیں وہ راز جنہیں وقت کی گرد نے دھندلا دیا ہے۔ ہم نے زمین و آسمان پر فتح پا لیا۔ ہم ایک دیوار بنائیں گے، ایسی دیوار جو لوہے سے مضبوط، آگ سے تپائی گئی اور تانبے تاریخ کے ہر ورق پر ایک ایسی سچائی منتظر ہے جو انسان کے تصور سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، جو بادشاہوں کی داستانوں میں رقم ہے اور جس کا خوف آج بھی مشرق و مغرب کی فضاؤں میں لرز رہا ہے۔ یاجوج اور ماجوج، وحشت، فساد اور تباہی کا دوسرا نام۔ وہ وحشی قبیلے جن کی پیدائشی زمین میں فتنہ برپا کرنے کے لیے ہوئی تھی، ان کا خروج قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، مگر اس سے پہلے ایک ابدی قید خانہ ہے، ایک فولادی آہنی دیوار جو انہیں انسانی دنیا سے الگ کیے ہوئے ہے۔ ذوالقرنین، دو سینگوں والا یا دو زمانوں کا فاتح ہے۔ یہ کوئی عام حکمران نہیں تھا، یہ ایک ایسا شخص تھا جسے رب نے قوت، حکمت اور اسباب کی فراوانی بخشی تھی۔ اس کی فتوحات نے سورج کے نکلنے کی جگہ سے لے کر اس کے ڈوبنے کی جگہ تک زمین کو سمیٹ لیا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی میراث، اس کا سب سے بڑا کارنامہ آج بھی دنیا کے کسی نامعلوم گوشے میں کھڑا ہے۔ ایک ایسی دیوار جو صرف پتھر یا مٹی کی نہیں بلکہ پگھلے ہوئے لوہے اور تانبے کی بنی ہے، ایک ایسی رکاوٹ جس نے تاریخ کے سب سے خوفناک خطرے کو قید کر رکھا ہے۔ کیا یہ صرف ایک مذہبی کہانی ہے، ایک قدیم افسانہ، یا کیا واقعی یہ دیوار آج بھی کہیں کھڑی ہے؟ کس جگہ، کس حال میں، اور کیا وہ لمحہ قریب آ رہا ہے جب یہ آہنی زنجیر ٹوٹ جائے گی؟ آج کی اس غیر معمولی دستاویزی کہانی میں ہم تاریخ کے ان اندھیرے گوشوں میں اتریں گے، قرآن کے بیان کو سمجھیں گے، قدیم محققین کی تحقیقات کا جائزہ لیں گے اور موجودہ سائنس و جیوگرافی کے آئینے میں دیکھیں گے کہ یہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے اور کیوں یہ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پر اسرار معمہ ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو سونے نہیں دے گی۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ذوالقرنین کو رب کی جانب سے زمین میں حکمرانی عطا کی گئی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک نیک، عادل اور خدا ترس انسان تھا۔ قرآن کی سورہ کہف اس عظیم شخصیت کے 3 اہم سفروں کا ذکر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ صرف عظیم فوج تھی بلکہ حیرت انگیز علم بھی تھا۔ وہ زمین کے کونے کونے تک سفر کرتا، لوگوں کی حالت دیکھتا اور جہاں ظلم دیکھتا وہاں انصاف قائم کرتا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی روشنی تھی، چہرے پر سکون، آنکھوں میں یقین اور الفاظ میں وہ وزن جو صرف نبیوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ پہلا سفر مغرب کی جانب۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مغرب کی سمت تھا، وہاں جہاں سورج سمندر کی گہرائیوں میں غروب ہوتا نظر آتا تھا۔ جب اس کی فوج چلی تو زمین پر گرد اڑنے لگی، گھوڑوں کے سموں کی ٹاپوں سے فضا لرز گئی۔ دن رات سفر جاری رہا، وہ پہاڑوں، جنگلوں اور بے آب و گیا میدانوں سے گزرا۔ آخرکار وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں زمین دلدلی تھی، سورج جیسے کالی مٹی والے پانی میں ڈوبتا محسوس ہوتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی جو بالکل انجان، سادہ اور کمزور تھی۔ یہ لوگ کسی واضح نظام کے بغیر رہتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان سے پوچھا، تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟
क्या तुम लोग इंसाफ से वाकिफ हो? वो डरते डरते बोले, नहीं, हमारे दरमियान कोई इंसाफ करने वाला नहीं। ताकतवर कमजोरों को दबाते हैं। ये सुनकर जुल्करनैन का चेहरा संजीदा हो गया। उसने तलवार आसमान की तरफ उठाई और बोला, मैं तुम्हारे रब के हुक्म से आया हूं। जो जुल्म करेगा उसे सजा दूंगा और जो ईमान लाएगा उसके साथ नरमी बरतूंगा। फिर उसने वहां अदल कायम किया। जालिमों को सजा मिली, कमजोरों को सुकून मिला। ताकत जब ईमान के ताबे हो तो वो रहमत बन जाती है। दूसरा सफर, मशरिक की समत। पहले इलाके में अदल कायम करने के बाद जुल्करनैन ने अपना दूसरा सफर मशरिक की समत शुरू किया। यह सफर ज्यादा मुश्किल था। तपता हुआ रेगिस्तान, तेज हवाएं, झुलसा देने वाली धूप, लेकिन कदम नहीं रुके। आखिरकार वो ऐसे लोगों तक पहुंचा जो सूरज की तपिश से झुलसे हुए थे। न इमारतें, न लिबास। गर्मी से बचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदते, रात को बाहर निकलते। वो इल्म और तहजीब से नावाकिफ थे। उनकी जबान भी समझ में नहीं आती थी। जुल्करनैन ने उन्हें पैगाम दिया, तुम्हारे रब ने जमीन तुम्हें दी है, इल्म सीखो, इंसाफ कायम करो और बुराई से बचो। यूं मशरिक की सरजमीन पर भी अदलो हिदायत की रोशनी फैल गई। तीसरा सफर, शुमाल की समत। फिर शुरू हुआ वो सफर जो सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा पुरअसरार है। बर्फीले पहाड़, तंग वादियां, खामोशी और खौफ की फिजा। एक मकाम पर दो पहाड़ों के दरमियान दर्रा। लोग डरे हुए, चेहरे थके हुए। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, बादशाह आदिल, एक कौम हम पर जुल्म करती है, वो सब कुछ तबाह कर देते हैं, हमारी जिंदगी अजीरन बना दी है। पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज रहते हैं। वो हमारी फसलें बर्बाद करते हैं, हमारी औरतों और बच्चों को कैद करते हैं। हम लड़ नहीं सकते। जुल्करनैन ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक रुकावट बना दूं ताकि याजूज और माजूज तुम तक ना पहुंच सकें? उन्होंने कहा, हाँ ऐ आदिल बादशाह, हम तुम्हें इस खिदमत का मुआवजा देंगे। सोना चांदी सब कुछ हाजिर है। मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। मेरा मकसद अल्लाह के हुक्म से जमीन पर अमन कायम करना है। बस तुम अपनी ताकत और मेहनत से मेरा साथ दो। लोगों ने लोहा, तांबा, आलात जमा किए और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे हैरत अंगीज तामीराती हम अमल। एक दीवार बनाएंगे ऐसी दीवार जो लोहे से मजबूत, आग से तपाई गई और तांबे से। लोहे के तख्ते पहाड़ों के बीच रखे गए। आग दहकाई गई, लोहा सुर्ख हुआ, फिर पिघला हुआ तांबा उन पर डाला गया। आग, लोहा, पिघला हुआ तांबा एक फौलादी दीवार बनी, हमवार, सख्त और नाकाबिले शिकस्त। ये थी सद्दे जुल्करनैन। वो लम्हा था जब पूरी वादी में एक अजीब सुकून फैल गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सजदे में सर रख दिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम महफूज हैं। जुल्करनैन ने आसमान की तरफ देखा, हवा में सरगोशी की। ये सब मेरे रब के फजल से हुआ है। जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज और माजूज फिर जाहिर होंगे। उसके अल्फाज वादी में गूंजते रहे। हवा जैसे रुक गई। सबके दिलों में खौफ और ईमान दोनों इकट्ठे धड़कने लगे। मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा, मगर ये वादा पूरा होने तक मजबूत खड़ी रहेगी। ये दीवार रब के हुक्म और कुदरत से बनाई गई एक ऐसी कैद थी जो क़यामत की निशानियों में से एक है। याजूज और माजूज को कैद कर दिया गया था। जमीन एक अजीम फसाद से महफूज हो गई थी। सदियों तक ये दीवार इंसानियत और तबाही के दरमियान एक ढाल बनी रही। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ये तो आगाज था उस राज का जो आज तक दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है।
जुल्करनैन ने जब दीवार की तामीर मुकम्मल की तो उसके चेहरे पर इत्मीनान जरूर था, मगर आंखों में एक गहरा ख्याल छुपा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह मेरे रब का वादा है, जब वो चाहेगा ये दीवार टूटेगी और याजूज और माजूज जमीन पर फैल जाएंगे जैसे पानी बहता है। ये अल्फाज सिर्फ वादी की दीवारों में नहीं बल्कि तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए नक्श हो गए। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं। जुल्करनैन की दीवार वक्त के धुंधलकों में गुम हो गई। न किसी को मालूम रहा वो कहां थी, न ये कि वो आज भी कायम है या मट्टी में दफन हो चुकी। याजूज और माजूज कौन थे? इस सवाल का जवाब कुरान के साथ साथ अहादीस में भी मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज दो कौमें हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हर 1000 में से 99 उन्हीं में से होंगे। ये एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने बेपनाह ताकत दी लेकिन हिदायत से महरूम रखा। उनकी फितरत में तबाही, बर्बादी और सरकशी भरी है। वो जमीन पर हर रुकावट तोड़ने, हर बस्ती उजाड़ने और हर कानून मिटाने के लिए पैदा किए गए हैं। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि याजूज और माजूज दरअसल वही कदीम तातारी, मंगोल या साइबेरियन कबाइल थे जिन्होंने बाद में दुनिया पर कयामत जैसी तबाही फैलाई। चंगेज खान, हलाकू खान। मगर हकीकत यह है कि असल याजूज और माजूज अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुए। दीवार का राज, ये सवाल आज भी दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन को हैरान किए हुए है। कुछ का ख्याल है कि ये कफकास के पहाड़ों में बहरे अस्वद और बहरे खजीर के दरमियान मौजूद एक मजबूत आहनी दरवाजा पाया जाता था। कुछ इसे चीन की अजीम दीवार से तशबीह देते हैं, जबकि दीगर का मानना है कि ये दीवार जमीन के अंदर किसी कदीम बर्फानी इलाके में दफन हो चुकी है। ताहम सद्दे जुल्करनैन की सबसे बड़ी पहचान उसकी साख्त है। ये लोहे और तांबे के इम्तिजाज से बनी है और इसमें कोई सुराख या दर्ज नहीं है। आज तक कोई भी मुहक्किक वसूख से नहीं कह सका कि इस दीवार का ऐन महल्ले वकू कहां है, और यही उसका सबसे बड़ा राज है। लेकिन एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, अगर कुरान में जिक्र है तो वो महज अलामत नहीं बल्कि हकीकत है जो किसी न किसी गोशे में आज भी मौजूद है। हदीस में आता है कि ये कौम रोजाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। वो अपने नाखूनों और औजारों से इस दीवार को खोदते रहते हैं, यहां तक कि जब वो समझते हैं कि अब बस थोड़ा सा बाकी है तो वो कहते हैं कल फिर वापस आएंगे। मगर जब वो वापस आते हैं तो दीवार पहले जैसी मजबूत हो चुकी होती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम कल इसे मुकम्मल तोड़ देंगे, और वो वाकई टूट जाएगी। यही वो लम्हा होगा जब जमीन पर कयामत के आसार जाहिर होने लगेंगे। जब ये दीवार टूट जाएगी तो जमीन पर एक ऐसी आफत फैलेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये कौम हर सिमत से निकलेगी, पहाड़ों से, मैदानों से, समुंदरों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पानी के करीब आएंगे और जो भी दरिया या झील मिलेगी उसे पी जाएंगे। पहला गुरोह जब गुजरेगा तो सब पानी खत्म हो जाएगा, और जब दूसरा गुरोह आएगा तो कहेगा कि यहां कभी पानी था। ये वो वक्त होगा जब दुनिया की तमाम ताकतें इनके सामने बेबस हो जाएंगी। जदीद हथियार, टेक्नोलॉजी, दीवारें, कुछ भी इनका रास्ता नहीं रोक सकेगा। इनका फैलाव इस कदर तेज होगा कि इंसान जमीन के किसी कोने में भी पनाह नहीं ले सकेगा। कुरान और हदीस के मुताबिक याजूज और माजूज के खुरूज के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे। वो दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, लेकिन जब याजूज और माजूज जाहिर होंगे तो वो और उनके साथी कोहे तूर पर पनाह लेंगे। ये कौम जमीन पर तबाही फैलाएगी, खेत उजाड़ देगी, शहरों को नेस्तो माबूद कर देगी। वो शहरों को रौंद डालेंगे, फसाद और खून रेजी उरूज पर पहुंच जाएगी।
इंसान इनसे भागकर कलों में पनाह लेंगे। वो आसमान की तरफ तीर फेंककर और उन पर खून देखकर कहेंगे कि हमने जमीन और आसमान के खुदा पर भी फतह पा ली है। हमने जमीन और आसमान पर फतह पा लिया। इंसानी ताकत या तदबीर इस फसाद को रोकने में नाकाम हो जाएगी। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से उनकी हलाकत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा फरमा देगा और वो एक ही वक्त में सब के सब हलाक हो जाएंगे। उनकी लाशों की बदबू से सारी जमीन भर जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंक आएंगे। फिर अल्लाह ऐसी बारिश बरसाएगा जो जमीन को धोकर साफ कर देगी और इस तरह याजूज और माजूज की कौम का खात्मा हो जाएगा। किस्से जुल्करनैन, याजूज और माजूज की दीवार ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तारीखी हकीकत और एक मजहबी इंतिबाह है। ये हमें याद दिलाती है कि जमीन पर अदल और ताकत को कायम रखने वाला एक ही है। दीवार आज भी कहीं खड़ी हो सकती है, किसी ऐसे दर्रे में जिसे सैटेलाइट, ड्रोन्स या जदीद टेक्नोलॉजी ढूंढ ना सका हो। एक ऐसा मकाम जो अल्लाह के हुक्म से इंसानों की नजरों से ओझल हो। अगरचे साइंस ने जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन क्या हम वाकई यकीन कर सकते हैं कि कोई भी जगह गैर दरियाफ्त शुदा नहीं है? इस कहानी का असल पैगाम यह है कि फितना और फसाद, चाहे वो दीवार के पीछे कैद हो या इंसान के दिल में, एक दिन जरूर बाहर आएगा। दीवार जुल्करनैन एक यादगार है अल्लाह की अता करदा कुव्वत, नेक नियति और ईमान की, कि एक फर्द अल्लाह के हुक्म से पूरी इंसानियत को एक बड़े खतरे से बचा सकता है। और दूसरी तरफ ये दीवार हमें याद दिलाती है कि जमीन की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत आहनी रुकावट भी एक दिन अल्लाह के हुक्म से रेत का ढेर बन जाएगी और फिर कोई ताकत दुनिया को इस सैलाब से नहीं बचा सकेगी। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब दीवार टूटी तो क्या आप तैयार होंगे? कहानियों की ये दुनिया आपके बगैर अधूरी है। अगर आपको ये तारीखी और ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई है तो एक लम्हा निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हां, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सब के साथ शेयर कीजिए जो आखिरत की निशानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मजीद ऐसी पुरस्रार और ईमान ताज़ा करने वाली दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।